Hello everyone. International Institute of Goat Management IGMA welcomes you to share experiences and deliberate on goat milk value chain pertinence for rural livelihoods. Webinar focus will be on value chain market orientation, robust supply chains, and producer-centric livelihood rehabilitation during and post COVID-19. We are fortunate to have a diverse panel for a stimulating session. Among them is Mrs. Vimla Ramesh, IAS CEO Umaid, MSRLM. Ma'am has had 27 years of vast experience in various arms of government and has contributed significantly to public welfare schemes. She has been instrumental in generating sustainable livelihoods for over 12 lakh households with turnover in tune of 1000 crores during her ongoing engagement with Umaid. Also joining us is Dr. K.K. Upadhyay, Advisory Board, International Institute of Goat Management. Sir has had 3 decades of experience with the development sector across corporate, not-for-profits, and government. He has successfully executed major initiatives, inclusive of Safal brand establishment with Mother Dairy, Bastar Integrated Development Project for Royal Danish Embassy, and Health of Urban Poor Program for USAID. Also joining us is Mr. Sanjeev Kumar, Founder Advisor, The Goat Trust. Sir is an Ashoka Fellow. He has had 2 decades of experience with development sector across grassroots implementation, academics, and policy advocacy. For the past decade, he has been promoting small livestock-based livelihoods as a means towards the idea of development. Among audience, we are fortunate to have participants from civil society organizations, NGOs, CSR, and we are also fortunate to have individuals with extensive experience on development policy and market-oriented approach for rural development. I'm Ritraj. I've had the opportunity to contribute towards setting up a goat milk value chain and lead marketing initiatives for fresh goat milk. I will be moderating the session. I would now brief on the planned proceedings. We will start with a presentation to set the stage for further discussion. Presentation will be followed by community experience sharing. Post this, the panelists will share their views on the topics pertinent for rural livelihoods. It would be followed by an inter-panelist discussion, and post that we will open the house to take questions from the audience. I welcome you all, and I hope for a stimulating session ahead. So I'll now start with the presentation. Voice. Is it audible now, sir? Yeah, you make it mic closer. There are. I'll keep it here, sir. I'll keep it here. Now we will be starting with the main part of the webinar. अब मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा. इसमें प्रेजेंटेशन में हमने ट्राई किया है कि जितना मेजर चीज़ है वो इंग्लिश में हम दिखा पाए, बट फॉर सारी जो हमारी ऑडियंस है उनके बेनिफिट के लिए इसमें मैं हिंदी में बताऊँगा. अब क्यों गोट मिल्क, अगर ये सवाल उठे, हमारा कस्टमर सर्वे से रिलेटेड एक्सपीरियंस, हमने काफ़ी कस्टमर सर्वे किए, उससे हमें ये समझ में आया 2 मेजर टारगेट सेगमेंट्स जिसमें एल्डरली और चिल्ड्रन है. इसमें हमने कंज्यूमर प्रॉब्लम मैप करने की कोशिश करी थ्रू सर्वेज. हमने काफ़ी लोगों से जाना, हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन था वहाँ हम कस्टमर के साथ प्रोडक्ट ट्रायल्स करते थे, तो इससे हमें समझ में आया कि डाइजेशन, वीक इम्यूनिटी और वीक स्केलेटन सिस्टम, ये मेजर प्रॉब्लम है अक्रॉस दिस एल्डरली और यंग चिल्ड्रन के टारगेट सेगमेंट में. गोट मिल्क, इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने गोट मिल्क के बेनिफिट्स ऐसे प्रोजेक्ट किए जो इस प्रॉब्लम को टारगेट करें, ताकि जो कस्टमर इस प्रोडक्ट को विजिबली देखे इधर ऑनलाइन या फिर किसी स्टोर पे, तो वो अपनी प्रॉब्लम को इसके साथ आइडेंटिफाई कर पाए. ऐसे में इजी टू डाइजेस्ट गोट मिल्क का ऐसे हमने तैयार किया. गोट मिल्क मेजरली मीडियम चेन फैटी एसिड से बना होता है.
और कैटल मिल्क में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। चेन्स जितनी छोटी होती हैं उतना वो इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इजी टू डाइजेस्ट। देन गोट मिल्क में सेलेनियम नामक पदार्थ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर। गोट मिल्क में कैल्शियम के साथ साथ, कैल्शियम ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा भी काफ़ी अधिक है। तो कैल्शियम आप ज़्यादा अमाउंट में ले लें पर अगर फास्फोरस मैग्नीशियम नहीं है तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं है। देयरफॉर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से गोट मिल्क आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो ये बेनिफिट्स हमने एस्टैब्लिश किए, कंज्यूमर को दिखाए, और विजिबिलिटी होने पे कस्टमर का परचेज हमें एज ए आउटपुट मिला। इसको अगर हम क्योंकि लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स में देयर हैज़ टू बी एक कंज्यूमर फोकस होना है, उसके साथ एक प्रोड्यूसर फोकस होना है। प्रोड्यूसर फोकस के लिए अभी का अगर हम सिनेरियो देखें कोविड-19 के बाद, तो मेजर जो रूरल मासेस हैं उन्होंने पार्शियली या कम्प्लीटली जो वेज लेबर है नियर बाय अर्बन सेंटर्स में वो लूज किया है। सेकेंडली, जो मास एक्सोडस हम विटनेस कर रहे हैं फ्रॉम अर्बन सेंटर्स ऑफ माइग्रेंट लेबर्स जो अपने विलेजेस वापस जा रहे हैं, तो इनके लिए लाइवलीहुड ऐसा हमें डिज़ाइन करना है जो कि इजीली ये टेकअप कर सकें, इनको डेली इनकम मिल सके और इनके न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर सके। गोट मिल्क में हमने ये तीनों चीज़ों को पाया है। असेट कॉस्ट, अगर एक बकरी कोई रखना चाहता है, 3 या 4 बकरियों के साथ शुरू करना चाहता है, तो उसका असेट कॉस्ट काफ़ी कम है। ये लैंडलेस के साथ भी काम कर सकता है, आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। मिल्क सेल्स से इसको ऑल टाइम मनी के नाम से भी इस लाइवलीहुड को लोग जानते हैं कि आप जो बक या जो लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग के बाद डेवलप होता है उनको आप एज पर योर नीड सेल कर सकते हैं। एंड मिल्क का सेल से डेली इनकम हम लोग प्रोड्यूसर के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली इनकम से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि लोअर कंजम्पशन हो सकता है। तो ये हमने एक केस बिल्ड करने की कोशिश की है, जिससे हम ये बताना चाहेंगे कि गोट मिल्क वैल्यू चेन से हम एक रूरल लाइवलीहुड और एक कंज्यूमर बेनिफिट की ओर कैसे जा सकते हैं। मूविंग ऑन, इस स्लाइड से हम ये दर्शाना चाहते हैं we are witnessing some noise from the background. चालू है वीडियो apa sih itu kan itu चला देता है ना चर्चा चाहते हैं प्रेजेंटेशन दाखवत। Okay. इस स्लाइड से हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि इस लाइवलीहुड का पोटेंशियल क्या है। अगर हम एनुअल मिल्क प्रोडक्शन, गोट मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया अराउंड 6 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ गोट मिल्क प्रोड्यूस करता है, which is around 24% of the total world production, तो 18.7 मिलियन मेट्रिक टन है। ये जो 6 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है, ये करंट प्रोडक्टिविटी दैट इज 120 ग्राम पर डे पर गोट के आधार, इसी से ये 6 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड का जो बेस्ट पर गोट प्रोडक्टिविटी पर डे है दैट इज 500 ग्राम, यानी आधा किलो। यदि हम इस 500 ग्राम का 250 ग्राम भी टारगेट करते हैं तो इंडिया 12 मिलियन मेट्रिक टन दूध प्रोड्यूस कर सकता है। इस दूध को यदि सिर्फ हम फ्रेश मिल्क ही सेल करें, कोई वैल्यू एडिशन में ना जाए, डेयरी इंडस्ट्री जैसे बहुत वैल्यू एडिशन में आगे बढ़े हैं, तो भी 1,80,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री डेवलप होता है। इन केस हम वैल्यू एडिशन की ओर भी जाते हैं तो इसका डबलिंग का कैपेसिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये 250 ग्राम हम अचीव कर सकते हैं? क्या ये बहुत हम लोग फार फेस्ट टारगेट तो नहीं ले रहे हैं? तो इंडिया में ऐसी ब्रीड्स हैं मैक्सिमम जिन्होंने 4-4 लीटर दूध भी प्रोड्यूस किया है। और अगर हम डेयरी गोट्स की बात करें तो बेस्ड ऑन आवर फील्ड एक्सपीरियंसेस 1 से 1.5 लीटर 1 से 2 लीटर पर डे दूध देने वाली बकरियां भी काफ़ी।
जो हम आगे एक वीडियो दिखाएंगे इसमें हम उसको और बेहतर तरीके से दिखाएंगे। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि 250 ग्राम कोई बहुत आगे का टारगेट नहीं है और वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। अगर 4 लाख करोड़ हम वैल्यू एडिशन के बाद एक्सपेक्ट करते हैं तो दिस वुड बी अराउंड 40% ऑफ व्हाट डेयरी वैल्यूएशन, डेयरी इंडस्ट्री का जो अभी वैल्यूएशन। Moving ahead, so this is the potential that we are looking at, and now we'll talk about what is the strategy and what is the way forward of achieving it. तो इसमें हमारे एक्सपीरियंस से हमें ये समझ में आया कि 3 मेजर स्ट्रैटेजी, 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखते हुए लाइवलीहुड डिजाइन करना। पहला है जिसमें वैल्यू चेन का मार्केट ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट बनना चाहिए, मार्केट के हिसाब से उसकी सर्विसेज होनी चाहिए। एल्स एट टाइम्स लाइवलीहुड में प्रोडक्शन पे फोकस काफ़ी हो जाता है, मार्केट ना होने के कारण वो फिर प्रोड्यूस सेल नहीं हो पाता। देयरफॉर एक मार्केट ओरिएंटेशन, उस मार्केट को सप्लाई करने के लिए हमारी सप्लाई चेन्स काफ़ी रोबस्ट होनी चाहिए। एट टाइम्स जो हमने और नए तरीके के दूध के साथ ऑब्जर्व किया, अगर फॉर अ केस हमने कैमल मिल्क, तो प्रिक्योरमेंट कॉस्ट ही इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो सस्टेनेबल नहीं हो पाते, या फिर मार्केट ले जाने के लॉजिस्टिक मार्केट इतना दूर है कि आप फ्रेश मिल्क आसानी से नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, आपको चिल्ड कंडीशन से। तो मार्केट को देखने के बाद हमें उसकी सप्लाई चेन कैसे हम रेगुलरली सप्लाई कर पाए। तो कस्टमर अगर एक बार या 4 बार उसको नहीं मिलता है तो कस्टमर वापस नहीं, इसलिए एक रोबस्ट सप्लाई चेन होना चाहिए। देन जिसके लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है उनको प्रोड्यूसर सेंट्रिक और प्रोड्यूसर बेनिफिट की सर्विसेज मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिसपे हम आगे भी डेलिब्रेट करेंगे कि मार्केट डेयरी इंडस्ट्री ने जो किया कि आप अश्योर्ड मार्केट है, आप जितना भी दूध लाएं और प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी, उसके साथ ही साथ बैक एंड सर्विसेज है। तो यही पूरा मॉडल हमें प्रोड्यूसर को देना होगा जो उनको इंसेंटिवाइज करेगा हायर प्रोडक्शन के। सो मूविंग अहेड, नाउ विल बी अ बिट फास्ट। हम और आने वाली स्लाइड्स में हम लोग अपना जो एक्सपीरियंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने जो 10,000 लीटर बकरी का दूध मार्केट किया है, वी वुड बी शेयरिंग दैट एक्सपीरियंसेस। तो ये हमारे 3 एडिबल कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, गोट मिल्क घी, गोट मिल्क चीज़ और फ्रेश मिल्क। एडिबल के अगर समझें, इसमें हम मिल्क का हाई वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। अगर आगे बढ़े तो ये है कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में जो मिल्क का वॉल्यूम कंजम्पशन है वो काफ़ी लिमिटेड है, बट कॉस्मेटिक्स में जनरली यू गेट एक अच्छी आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है, और एम्बियंट में भी ये 2-2 साल तक या 1 साल तक खराब नहीं। फ्रेश में आपको काफ़ी प्रोडक्ट में एक चिल्ड सप्लाई चेन मेंटेन करनी होती है। सो अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें इनिशियली दूध कम है, जहाँ हमने स्टार्ट ही किया, तो वहाँ हम कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं। और जिन प्रोजेक्ट्स में या जिस एरिया में प्रोड्यूसर्स के यहाँ 10 लीटर 20 लीटर से ज़्यादा या 100 लीटर तक डेली दूध प्रोड्यूस होने लग जाए, इवन 1000 लीटर्स और 5000, then we can graduate to edible category. So अब हम फ्रेश मिल्क जो हमने लखनऊ में मार्केट किया है उसका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या था, कैसे हमने कस्टमर एक्वायर किए, क्या हमारी प्रमोशन स्ट्रैटेजी थी, इस पे हम लोग आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन था, क्या ये कंज्यूमर खरीदेगा। हमें भी पहला ये जो सबसे पहला थॉट आया कि इसका टेस्ट कैसा होगा, क्या बकरियों में इतना दूध हो ही सकता है। तो हमने आजसेल्फ ही एक्सप्लोर्ड इट, हमने प्रोडक्ट्स के ट्रायल इंटरनली किए, तो हमें टेस्ट में कोई इशू नहीं लगा, तो हमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ इट कैन सेल। बट यही बात हमें कस्टमर तक भी पहुँचानी थी। इनिशियली हमने हेल्दी लोगों के जो हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि पार्क हो गए जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, वहाँ पे इस तरह कैनोपी हमने स्टैब्लिश किया, जहाँ लोगों को इसके ट्रायल्स कराए। तो टेस्ट का जो मिथ था कि बकरी का दूध बहुत ही पंजेंट होता है या हम पी नहीं सकते, वो एक मिथ डिबग हुआ। इसको स्मेल करके लोगों ने ये भी कहा कि ये ऐसा दूध लग रहा है जो पहले टाइम में ट्रेडिशनली गाय का दूध की जो स्मेल आया करती थी, तो गाँव में फ्रेश दूध हुआ करता था उसकी तरह। देन दूसरा क्वेश्चन जो मेजर आता था कि क्या बकरियों में इतना दूध हो सकता है, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रस्ट था, क्योंकि लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन आता था ये असली दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो हमने उस पर उनको सेंसिटाइज किया। जमुनापारी जो भी डेयरी गोड्स को लोग अपने ट्रेडिशनली जानते हैं या विलेजेस में एक्सपीरियंस किया है,
उनको वो चीज़ दर्शाने की हमने कोशिश करी। और इसमें यहाँ जो क्वेश्चंस डेवलप हुए उसी के बेसिस पे हमने प्रमोशन स्ट्रैटेजी अपनी डेवलप, ताकि वही चीज़ हम कस्टमर को करें जो कस्टमर के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, और अ बेटर परचेज और हायर अपटेक ऑफ प्रोडक्ट from our selling point. So this was the promotion which continues till now and will be continued because this is a continuous learning experience. Customer क्या चाह रहे हैं, क्या नई सर्विसेज हमें ऐड करनी है. Moving ahead, प्रमोशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें स्टार्ट करना है. तो प्रमोशन के लिए जो मेन स्ट्रीम पॉइंट्स हैं, they were very difficult or very costly. Like if you go for a TV ad या आप कोई बैनर लगाएं तो वेरी हाई कॉस्ट एक्सपेंडिचर. रेडियो एड्स करें, फॉर एग्जांपल हमने रेडियो एड किया था, बट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज मिनिस्क्यूल, हमें उसमें कोई रिटर्न नहीं मिला. देन वी स्टम्बल्ड अपॉन डिजिटल मार्केटिंग. ये अभी जो आप एग्जांपल देख रहे हैं ये फेसबुक ऐड है. इसमें हमने लखनऊ के एक एरिया को डिफाइन करते हुए ये ऐड हमने रन किया. लोगों को मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर के जो प्लेटफॉर्म से फेसबुक लोगों को ऐड दिखता था, लोग बुक नाउ करते थे. देन वी वुड प्रोवाइड द ट्रायल एट देयर होम एंड देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट. हमने ये भी देखा एक एक्सपीरियंस के लोग लखनऊ का जो मार्केट है वो हिंदी को ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है कंपेयर टू हिंदी. मूविंग हेड, ये हमने होम डिलीवरी और इनिशियल प्रोडक्ट सेल के लिए स्टार्ट की. देन वी मूव टू रिटेलर्स. तो हमने पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन बनाया, यहाँ पे बैनर, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी. इसके साथ ही साथ हम लोग जैसे ही एक रिटेलर स्टार्ट होता था तो अगले 3 से 4 दिन के लिए हमारा कैनोपी वहाँ स्टैब्लिश करते थे. जो भी लोग दूध खरीदने आते थे उन्हें हम गोट मिल्क के बारे में बताते थे. एंड विद इन 3 to 4 days we could get a good decent sale for the retailer. And this would also provide a permanent visibility. So digital visibility वो तब तक ही है जब तक कस्टमर उसे देखता है या जब तक आप एड रन कर रहे हो. आफ्टर दैट इस तरह की जो ब्रिक एंड मॉर्टर विजिबिलिटी है दैट स्टेज. तो ये लंबे समय तक कस्टमर के दिमाग में रहता है और कोई भी इस सड़क से निकले तो उनको दिखता है. तो दिस हेल्प्स यू टू क्रिएट अ ब्रांड इन दी एरिया. तो ब्रांड विल गिव यू ट्रस्ट. इनिशियली आप जब भी जाएंगे इस तरह के प्रमोशन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, विच इज ट्रू. कॉस्ट ऑफ रीचिंग आउट काफ़ी कम है, बट ब्रिक एंड मॉर्टर विजिबिलिटी या फिजिकल विजिबिलिटी आपको एज ए ब्रांड डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है. एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रमोशन पैम्पलेट. सो लाइक दिस, इसी की तरह हमारे पास हमने फ्रेश मिल्क और चीज़ के भी प्रमोशन पैम्पलेट्स डेवलप किए. ये हम टू दी कस्टमर डायरेक्ट टू होम भी प्रोवाइड कर सकते हैं. हम लोग रिटेलर्स के पास भी रख सकते हैं. तो रिटेलर तक तो कस्टमर वहाँ जाके देखता है, बट ये पैम्पलेट उनके घर तक पहुँच जाता है. तो घर तक पहुँच के घर के और लोग वो किसी और के साथ शेयर करना चाहिए. इवन डायरेक्ट टू होम पेनिट्रेशन के लिए पैम्पलेट्स हमने देखा वाज अ बेटर ऑप्शन. So this was our marketing experience, and we through these efforts we were able to market both. Now talking about supply chain issues that we have faced and what we look ahead. So goat milk has a very high production seasonality compared to dairy जहाँ पे lean उतना strong नहीं आता. गोट मिल्क में फ्लश सीजन्स आर मार्च टू मई और डेयरी में विंटर्स में फ्लश आता है. लीन गोट में आपको सितंबर टू नवंबर में मिलता है. तो इस लीन के टाइम 50 to 60% ड्रॉप ऑफ मिल्क प्रिक्योरमेंट वी हैव ऑब्जर्व. तो इन केस यू हैव अ परमानेंट मार्केट इन द सिटी एंड कस्टमर को अगर उस समय प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वी सी एट्रिशन ऑफ कस्टमर. So before starting the livelihood with the market orientation, we need to see if we are able to supply the product around the year. पूरे साल भर हम product supply कर पाए. इसके लिए हमें अगर हम fresh में जा रहे हैं तो हमें ऐसे products लेने हैं जो उनकी shelf life अच्छी हो, जैसे घी और cosmetics. और यदि हम अगर edible form में जाना चाहते हैं जैसे fresh में, माफ कीजिएगा मैंने पहले गलत किया. अगर आप लॉन्ग शेल्फ लाइफ, एक सोल्यूशन इसमें ये है कि आप लॉन्ग शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स में, अगर आपको राउंड ईयर सप्लाई चाहिए मैनेजिंग द सीजनैलिटी, अदरवाइज आपको पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में जाना है. एंड पाउडर मैन्युफैक्चरिंग जब लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कि दिस वुड बी अ वेरी कॉस्टली टेक्नोलॉजी.
we have explored and we have found कि 10 लीटर पर आवर, 15 लीटर पर आवर, 5 लीटर पर आवर तक के भी पाउडर प्लांट्स अवेलेबल है एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो जहाँ एक लाइवलीहुड सेंटर हम स्टैब्लिश करते हैं जहाँ पे 10 लीटर दूध आ रहा है, उसको भी हम पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ अराउंड 3 years. So this is how we can manage the production seasonality and satisfying the customer as well without facing stock out in the market. Now, towards the conclusion of the PPT, the most important aspect, we need to have a producer centrality for the livelihood. Because it is the producer that we are working for, and we need to strive to provide them services which are easy to access and the services that may reduce drudgery for the producer. So keeping that in mind, for starting the livelihood in the context of COVID, first for people who are new to it or people जो producer जिनके साथ हम देख रहे हैं कि वो expand करना चाहेंगे, पहला input है finance. Finance would be required जिससे वो asset को ला सके अपने पास और या फिर अपना existing herd size को बढ़ा सके. Post finance feeding inputs की हमें ज़रूरत है. इसका अभी जो मेजरली गोट ट्रेनिंग है दैट इज ऑन ग्रेजिंग बेस, बट वो ड्रेजरी बहुत इंड्यूस करता है क्योंकि 6-7 घंटे लोग चराने निकलते हैं बकरी को। इस कारण से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको करना नहीं चाहती, तो वी हैव टू रिड्यूस द ड्रेजरी और हमें स्टॉल फीडिंग को प्रमोट करना है। और दैट हमें इनको डायरेक्ट टू होम फीड और ग्रीन फॉडर का सप्लाई चेन डेवलप करना होगा पैकिंग सर्विसेज की, जो एक हद तक हमने किया भी है अपने प्रोजेक्ट एरिया में शो यू फॉर। इसमें जो सेकंड एक्सपेक्ट आता है कि चलिए आपने ये फीड और फॉडर दिलवा दिया, बट हाउ विल द प्रोड्यूसर पे फॉर इट, क्योंकि इसमें डेली का खर्च है। सो दैट्स वेयर गोट मिल्क कम्स इन। गोट मिल्क विल प्रोवाइड डेली इनकम टू द प्रोड्यूसर which will enable them to invest in the daily feed for the livestock, which would in turn enable to grow the livelihood. Otherwise ये livelihood grow नहीं करेगा without investment, ये सिर्फ एक subsistence तक ही रह जाएगा। After feed we need to ensure breeding services. तो जैसे कि खेत में एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब पानी लगता है, और अगर वो टाइम चला जाए तो फिर पानी लगाने का कोई सेंस नहीं है। उसी तरह लाइफ स्टॉक में भी ब्रीडिंग सीजन एक स्पेसिफिक होता है, उसी समय सारे लाइफ स्टॉक को ब्रीडिंग सर्विसेज चाहिए। और जो ट्रेडिशनल मेथड है कि बग से ब्रीडिंग हम एश्योर कराएं, तो सिंगल बग या कुछ बग विलेजेस में होने के कारण सारे प्रोड्यूसर्स को ये सर्विसेज नहीं मिल पाती। सो द इनोवेशन दैट वी हैव ब्रॉट इन दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर गोट्स, एंड थ्रू आवर फील्ड ट्रायल्स वी आर एबल टू गेट 60% कंसेप्शन रेट। तो इसमें डुअल बेनिफिट्स हैं। एक तो ये प्रोड्यूसर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एवरी डोरस्टेप, and it would also improve the genetic structure of the breed, which would provide higher productivity in further breeding cycles. Then is the risk. So risk, there can be morbidity risk and mortality risk. So one way is to reduce the exposure to the risk. Exposure reduce करने के लिए हम preventive health care पर focus करें, और when that risk has actualized, जब वो रिस्क हो चुका है, जब डेथ या मॉर्टिलिटी हो चुकी है, then we need to have insurance which can reduce the damage cost to it. So अब ये सारी सर्विसेज हैं, बट ये पहुंचाएगा कौन? क्योंकि गांव तक पहुंचाना सर्विसेज इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। यू कैन कंसेप्चुअलाइज, बट वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे होगी, वो एक्सटेंड कैसे होगी, दैट्स वेयर द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन कम्स इन, पशु सखी, जो कि डोर स्टेप, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एक एम्पैथी के साथ सर्विसेज प्रोड्यूसर्स को दे पाते। Then the major part is the market. Market has to be thought from the beginning, not at the end, which can be helpful for propelling the livelihood by providing remunerated market. So this was our experience with 10,000 liters of goat milk marketing. Now we'll move ahead with the community experience sharing session. So Dharmendra ji, I'll request you to for community sharing session. नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र है
और मैं पिछले 4 वर्षों से महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ज्योति अभियान उम्मीद के साथ में सुधारित बकरी पालन पर कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर 4 जिलों के 13 ब्लॉक में सुधारित बकरी पालन पर कार्य चालू है। इन 13 ब्लॉक में हम ब्लॉक टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम व 75 सीएलएम के साथ में हम इन 13 सीएलबीसी के थ्रू हम कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी पशुसखियाँ इन सभी गांवों में जाकर बकरी पालकों को सुधारित बकरी पालन पर जागरूक करती हैं और मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए उनको गांव में हर माह में एक कैंप के थ्रू उनको सेवाएं प्रदान करती हैं। और इन 13 सेंटरों के साथ में हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं कुछ चीज़ों का, इनपुट, दाना मिश्रण, पशु चारा, नीम तेल, और इन सारी चीज़ों को बेच के वो फिर आर्थिक अपना स्थिति को बढ़ावा देती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सविता ताई से कि सविता ताई अपना अनुभव बताएं। सविता ताई। नमस्ते। ताई तुम्ही बोला बरं का? ताई बोला, बोलायला सुरू करा ताई। सविता ताई बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम सविता ब्राह्मणकर है। मैं पिछले 3 वर्ष से विदर्भ पशु उन्नति संसाधन केंद्र से जुड़ी हुई हूँ। मैं इसमें एक सदस्य हूँ और साबुन बनाने का काम देखती हूँ। इसी तरह के केंद्र पूरे महाराष्ट्र में 13 बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 53,000 बकरी पालक इससे जुड़े हुए हैं और 2,50,000 बकरियां जुड़ी हुई है। हम गांव से 50 रुपए लीटर बकरी का दूध खरीदते हैं और सीएलबीसी में इससे साबुन, हैंड वॉश, बॉडी लोशन, क्रीम, पनीर तैयार करके हम गांव में और बाहर बेचते हैं। पिछले वर्ष इन केंद्रों से लगभग 35 लाख रुपए की साबुन और बकरी के बनाए हुए दूध से अन्य प्रोडक्ट की बिक्री हो गई है। आज हम साबुन व अन्य सामान को बड़े स्तर पर बनाने की योजना भी बना रहे हैं और बकरी के ताजे दूध को बाजार में बेचने की अगली योजना भी बना रहे हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद। मैं लक्ष्मी ताई से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना अनुभव शेयर करें। लक्ष्मी ताई। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नागोराव नागोसे है। हेलो। हाँ बोलिए ताई, बोलिए। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नागोराव नागोसे है। मैं 3 वर्ष से विदर्भ पशु उन्नति संसाधन केंद्र में जुड़ी हुई हूँ। मैं इसमें एक सदस्य हूँ। इसमें हम सब पशु सखी मिलकर दाना मिश्रण, पशु चाट बना रहे और बना के गांव-गांव में बकरी पालकों को बेचते हैं। जैसे पशु चाट खिलाने से क्या कैल्शियम और मिनरल मिलता है, वह दूध की मात्रा बढ़ाती है, बच्चे का वजन भी बढ़ाती है और बकरियां अच्छे से चारा पानी करती है और गर्भपात भी नहीं होता। जैसे कि ये पशु चाट है, इसमें कैल्शियमिक ईट बकरी को चाटने के लिए दिए जाती है। और दाना मिश्रण जैसे कि बकरी कमजोर या पिल्लू कुपोषित ना रहे, इसीलिए खिलाते हैं। जैसे दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खिलाते हैं, इससे बकरियों में गर्भपात नहीं होता, बच्चे अच्छे पैदा होते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं, मरने की संभावना भी नहीं होती और पशुपालक का कोई नुकसान भी नहीं होता। इसीलिए पशुपालक को पशु चाट दाना मिश्रण खिलाने के सलाह देते हैं। और आगे हम पशु चाट और दाना मिश्रण को बड़े स्तर पर बढ़ाने का योजना बना रहे हैं, जिसके लिए सीएलबीसी की तरफ से मशीनों की तैयारी चालू करनी है। धन्यवाद।
ऋतुराज सर। फोटो काढतो, फोटो काढतो. इकडून काढायला. इकडून. इकडलं आहे का? वर्धेचे आहे. दाखवलंच नाही. कशी दाखवलं? दाखवलं काय ना तिथे तुला दाखवत आहे ना. हे आपलं आहे. आपणच लोक आहे. सचिन आहे का? हे ताई किसी का टिकल. We have another video regarding the Caprico freshman marketing in the संग्राम एक्क्याण्णव 30 86 आहे ना 86 11 76. ऐश्वरी एक आमचा फोटो घे करायचा. आमचा फोटो घे असा. दोघी आलं पाहिजे. थैंक यू पशु सखी ताई, आपका धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. This was the video to मोबाइल पण आला पाहिजे. inside the grassroots. Now we'll move ahead with the panelist take on the value chain pertinence for good livelihoods. So I would request Madam to please provide her insights and take on this. मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया. कर लेना 1.5 घंटा लगा. Plus, it needs to be unmuted. Madam is just now muted. I believe communication did not went clearly. We'll start.
Adya sir, we'll start with you, sir. You will start with me. Yes, sir. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपके कैंपस में आया और जब ये हमने कैप्रिको मिल्क प्लांट का शुरुआत की थी तो I had the good fortune to be there. I will try to be very brief because I have been associated with the Anand pattern. I did my veterinary sciences from Pantnagar and then joined IRMA. The idea was to work with rural people. And I've been lucky to work with Dr. Varghese Korean for long and started milk pattern in Punjab, in UP and other places. The learning was tremendous. लेकिन जब मैं आप लोगों से मिला तो मुझे ये पता लगा कि it can be done very well in the small ruminant section also. उसके दो बहुत बड़े बड़े रीजन हैं। एक रीजन तो क्या है कि गांव में वैसे ही लाइवलीहुड घटता जा रहा है और लोगों के पास अब नए नए ऑप्शंस चाहिए और एग्रीकल्चर में अब वो दम नहीं रहा है कि वो हमारी 70% पॉपुलेशन को जो ऑलरेडी 52% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और उसके आगे एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि मोस्ट ऑफ दीज आर नॉट रियली फार्मर्स. फार्मर्स मीन्स दे डोंट हैव लैंड. Most of them are agricultural laborers. Most of them are people who provide other services in the village. और अब जो ये नया इशू आया है माइग्रेशन का, with this issue of migration, things have changed a lot. About 40% people work in unorganized sector, which comes to around 20 crore. Out of them, 10 crore are these migrants who are moving now. अब ये लोग जो विलेज में जा रहे हैं, हाउ विल दे सर्वाइव देयर, वो कैसे अपना वहां पे गुजारा करेंगे, एंड कैन रियली विलेज अकोमोडेट देम? अगर ऐसा होता तो व्हाई डू दे वुड हैव मूव्ड टू द सिटी? विद दीज क्वेश्चंस कमिंग इन, वी विल हैव टू लुक फॉर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड. अगर हम अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की बात करें तो मुझे लगता है कि बकरी पालन जो है, दैट्स ए ऑब्वियस ऑप्शन. एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है और मुझे खुशी है कि गोट ट्रस्ट ने इस पे बहुत सारा काम किया है. इसके तीन बेहतर आयाम हैं. फर्स्ट इज द फार्मर. वी हैव टू लुक एट फार्मर एज ए इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड लुक एट हिज डिग्निटी. जो हमारे जो बहुत सारी अप्रोच रही है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, वो रही है बेनिफिशियरी के. वी ट्रीट देम एज ए बेनिफिशियरी कि उनको कुछ लाभ मिलता है. We have to treat them with dignity at par with us. दूसरा, उनको उनके घर पे ही रोजगार चाहिए जो बकरी पालन देता है. और तीसरा, उनके लिए हमें टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, जैसे आपने कृत्रिम गर्भाधान की बात की, चारे की बात की और उन्हें दूसरी दवाइयों की बात की, वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है. दूसरा है प्रोसेसिंग. आई थिंक जब हम प्रोसेसिंग में जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज है हाइजीन. और जैसे आपने काम भी किया है, अभी ढेर सारा काम और करना पड़ेगा. वो करना पड़ेगा लोगों का परसेप्शन बदलने के बारे में. इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन ओनली. परसेप्शन बदलने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के साथ काम करना पड़ेगा. इसमें हमें सोशल साइंटिस्ट और दूसरों का भी सेवाएं लेनी पड़ेंगी. और तीसरा है मार्केटिंग. जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो कंज्यूमर ऑलरेडी उसमें आ जाता है. कंज्यूमर इज लुकिंग फॉर प्रोडक्ट विच हैव ए वैल्यू. एट द सेम टाइम दे डोंट हैव ए प्राइस टैग. अगर हम पतंजलि का मॉडल देखें तो हमें ये लगा कि अगर लोगों को पहले तो सही चीज चाहिए, सही क्वांटिटी में चाहिए, और तीसरा एक सही प्राइस टैग के साथ भी चाहिए. इनको मार्केट करने के लिए दैट्स वेयर वी नीड प्रोफेशनल सर्विसेज. अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज दे पाए तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं. इसमें तीन चीजें मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होती हैं. पहला है ट्रस्ट. ट्रस्ट इज ए मैटर ऑफ फेथ कि जो हम कर रहे हैं क्या हमें उसमें ट्रस्ट है, और यही ट्रस्ट क्या हम
जो आज शहर और गांव के बीच में है। जो हमारे शहर के जो हमारा रिच व्यक्ति है, जिसे हम आजकल जब हम बहस करते हैं तो हम कहते हैं देयर इज वन इंडिया एंड देयर इज ए भारत। वो भारत और इंडिया के बीच में जो ट्रस्ट है, क्या हम उसे कम कर सकते हैं? और ये जो इनकम गैप है, क्या हम उसे कम कर सकते हैं? अगर हम उस पर काम कर सकते हैं तो ये हम बहुत आगे तक इसे ले जा सकते हैं। दूसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी। क्या हम पारदर्शिता हर चीज में ला सकते हैं? चाहे हमारे प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा काम हो, हमारी फाइनेंसिंग हो, जो बहुत हद तक गोल्ड ट्रस्ट ने किया है। हम लोगों में अपने प्रति एक विश्वास लाए हैं, साथ ही एक ट्रांसपेरेंसी लाए हैं। आप जो जानना चाहें वो पूछिए, हमारे पास हर चीज है। इसलिए जब मैंने इसका टैगलाइन भी बनाया था तो मैंने यही कहा था कि हमें सफलताएं कम मिली हैं, असफलताएं बहुत अधिक मिली हैं, लेकिन हमने अपनी हर असफलता से सीखा है और उसे एक अच्छी टेक्निक में कन्वर्ट किया है। इसलिए आप हमसे सीख सकते हैं। और तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी। आज लोग हाइजीन के बारे में बात करते हैं। जब कोरोना वायरस की बात आती है तो हम हाइजीन की बात करते हैं, हम डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। तो ये चीजें लोग अब सीख रहे हैं। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी को कैसे ला सकते हैं? आपने जैसे बात की कि हमें डिजिटल जाना पड़ा, फिर हमें ये देखना पड़ा कि हमें हिंदी में करना है, क्योंकि इंग्लिश जो लखनऊ का हमारा कंज्यूमर है वो नहीं समझता है। तो उस चीज को हमें लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को। और इन सब चीजों के लिए आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि वी हैव टू वर्क टुगेदर। चाहे वो हमारी, मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन में काम करता हूँ, बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करता हूँ, एनजीओ में रहा हूँ, इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम किया है। मुझे एक ही चीज समझ आती है, वो ये है कि जब तक हम लोग आपस में मिलकर काम ना करें, हमें सफलता नहीं मिलेगी। So we have to take all stakeholders with us. Let's work together and let's not have a project. Let's have a revolution. Let's have a movement. अगर हम इसको एक मूवमेंट की तरह करें, जिसमें संजीव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और सरकार के लोग भी आज बकरी बैंक और इसकी बात कर रहे हैं, यदि हम लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें, इकट्ठा काम कर सकें, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी को ला सकें, तो मुझे लगता है कि ना केवल हमारे देश का, बल्कि हमारे किसान का, हमारे कंज्यूमर का, हमारा भाग्य साथ में जुड़ा हुआ है। And we are heading for a very good future. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much, sir, for that insightful thought and covering all aspects of the value chain. I would now request Sanjeev sir to have his take on the value chain and its. Rishraj, ma'am is waiting. Okay, sir. But ma'am completed. Hello, ma'am, and Yes. Yeah, good afternoon. good afternoon, ma'am. Yeah, thank you very much. सगळ्यात ताईंना माझा नमस्कार. दोज हू हैव जॉइन्ड फ्रॉम महाराष्ट्र, सबसे मेरा नमस्ते है। और अभी हमारी जो दीदियां जो बोली, दो संगीता जी और लक्ष्मी जी, मुझे बहुत गर्व और अभिमान है कि ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है महाराष्ट्र में बकरी पालन का, एक व्यवस्थापन है और इसे सही तरह से और अच्छी तरह से हमारी महिलाएं जो कर रही हैं और इस मुकाम पर पहुंची, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हम लोग 254 गांवों में काम कर रहे हैं। शुरुआत हमने छोटी की थी, पर हम लोग आज अगर हम लोग देखें तो 4 लाख से भी ज्यादा जो गोट पशुपालक हमारे साथ हैं, महिलाएं जुड़ी हुई है, पशुपालन का काम कर रही है। 16 लाख से भी ज्यादा हमारे यहाँ बकरियों का जो है नंबर्स हो चुका है। और मैनेजमेंट जो करना है, क्लस्टर लेवल का जो मैनेजर्स है हमारे यहाँ, जो बकरी व्यवस्थापन करे, 400 लोगों से ज्यादा है। और अभी तो सिर्फ 2 दीदियों से आपकी मुलाकात हुई है, ऐसे हमारे पास 6000 से भी ज्यादा दीदियां जो काम कर रही हैं, और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र से बाहर भी ये काम कर रही है। तो ये संभव हो पाया है क्योंकि हमने जो शुरुआत की थी गोट ट्रस्ट के साथ 2016 में शुरुआत की थी, और हम लोग ये काम करना शुरू किए थे 2016 से। आज हम लोग करीबन 300 करोड़ की राशि तक की इसमें से व्यवस्थापन में से हम लोग महिलाएं कमा चुकी हैं, क्योंकि ये पशुपालन किस तरह से किया जाना चाहिए, ऐसे हम लोगों ने 500 मास्टर ट्रेनर बनाए थे।
पर हम लोग सिर्फ जिस गाँव में टीजीटी काम करे वहां नहीं रुके। आज हम लोग शुरुआत हमने भले 13 जिलों से किया था, पर आज हम लोग पूरे महाराष्ट्र में 34 जिलों में पशुपालन का, बकरी पालन का काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो डीवर्मिंग हो, वैक्सीनेशन हो, कैस्ट्रेशन हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, तो बड़ी संख्या में 16 लाख की संख्या में तो डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन हुआ है। कैस्ट्रेशन कुछ करीबन 1 लाख पशुओं में हुआ है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बढ़ रहा है। पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सर्विसेज देना, जो हम लोगों का MSRLM या NRLM का जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम कोई कैडर निर्माण करते हैं तो कैडर के माध्यम से सर्विस देना बहुत जरूरी है। तो हमारी दीदियां जो सर्विस दे रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सर्विस लोगों तक पहुंचा रही है और करीबन इन्होंने इसमें से 10 करोड़ का जो उलाढ़ा उनका जो कमाई किया हुआ है कि ये कुछ जो बेचना होता था उनको, डीवर्मर हो या वैक्सीनेशन देना हो, पशु चाट है जैसे उन्होंने दिखाया अभी, मसाला बॉल्स है जो कहती है कि मनुष्य भी इसको खा सकते हैं, इसमें सारे जो चीजें डाली हुई है तो वो दे देते हैं, या नीम ऑयल जो बना रहे हैं, दाना मिश्रण जो बना रहे हैं, या जो पशु खाद्य जो है वो बना रहे हैं। गोट मिल्क सोप की तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं खुद भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ, देखा है कि हमारे जो त्वचा के लिए महिलाओं ने बना हुआ गोट मिल्क कितना उपयुक्त है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो एक और गोट का जो भी सेल होता है, तो ये ऑनलाइन सेल करने का प्लेटफॉर्म भी गोट ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। तो इस तरह से जो महिलाओं में जो उत्साह है, ये जो एक व्यवस्थापन है, स्पेशली हम लोग जानते हैं कि पुरातन काल से, जैसे गांधी जी भी कहा करते थे कि गोट मिल्क कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक गांव की औरतों को गाय रखना, भैंस रखना पॉसिबल नहीं होता, पर ये स्मॉल रिमेनेंट्स जो है बकरी पालन की वजह से जो बदल हो सकता है, ये हमारी महिलाओं ने सिद्ध करके दिखाया है कि बकरी पालने की वजह से उनके लाइफ में कितना प्रगति हुआ है। बकरी का जो दूध है उसका सेवन करने से हमारे हेल्थ के लिए कितना, और मैंने टेस्ट भी कर देखा है कि मन में हमेशा वहम होता है कि बकरी का दूध और गाय के दूध में कोई फर्क हो क्या, लेकिन अगर हम लोग जब पीते हैं, जैसे अभी कैप्रिशियो का भी यहाँ पर दिखाया था, और हमारे महाराष्ट्र के ब्रांड का हम लोग जब मिल्क सेवन किया था, तो मुझे समझ में आया था कि ऑलमोस्ट सिमिलर है टेस्ट और स्मेल भी। तो इसीलिए जो मन में कई बार हमारे मन में होता है कि ये कैसे इसका सेवन किया जाए, शायद इसको भी हमारे मन से इसे हटा देना चाहिए इस बात को। कोविड के समय में अगर देखें तो महिलाएं आज भी, जैसे शुरुआत के समय में बकरी बेचने में शायद उन्हें तकलीफ हुई, दूसरे काम करने में व्यवस्था में शायद कुछ मुश्किलें आई होगी, पर सोप मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, हैंड वॉश बनाने का काम आप देख रहे थे वीडियो में बड़ा अच्छा चल रहा है, और डीवर्मिंग का और ये जो दूसरी भी जो है वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। विशेषतः हम लोगों ने महाराष्ट्र में ई लर्निंग पर और ऑनलाइन ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया था। इनफैक्ट पूरा एनुअल एक्शन प्लान और पूरा मैनेजमेंट जो है हम लोगों ने करीब करीब 7 दिन का पूरा ट्रेनिंग दिया था पूरे व्यवस्थापन के लिए, हमारे पूरे कैडर के लिए, और उसका जो फॉलो आउट हुआ कि तालुका लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सारे डिस्ट्रिक्ट टीम जो है उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत की और उन्होंने भी ई लर्निंग सेशंस लिए हैं। तो गोट रेयरर्स की जो क्लस्टर लेवल मैनेजर्स हैं उनका, हमारे पशु सखियों का, इन सारे दीदियों का भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ। इसीलिए ये सारे तत्पर है हर बार आप देखिए काम करने के लिए। यवतमाल में विशेषता, वर्धा में, हर जगह इसका काम बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। तो मुझे बहुत उम्मीद है इस प्रोग्राम से, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए तो अच्छा ही अच्छा है, पर इनके लिए, इनकी व्यवस्थापन में, इनको आर्थिक वृद्धि करने में भी इनको बहुत मदद हो सकती है। कोविड है जब तक तो ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने जैसे 2-3 प्रोग्राम्स है स्मार्ट प्रोग्राम में, जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इनके साथ जो प्रोग्राम होने वाला है, इसमें जो है पशु के बारे में काफी सारा बकरी का प्लानिंग, बकरी व्यवस्थापन के बारे में इसमें काफी प्लानिंग है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें चिवन ने हमसे 500 गोट्स खरीदी किए, या आगे फिर कैप्रिनो है, लिशियस है, एमिगो है, ये सब ने इंटरेस्ट दिखाया हमारे महिलाओं के साथ काम करने में और स्मार्ट प्रोजेक्ट में आगे जो है भागीदारी आगे ले जाने के लिए। तो इसके लिए भी हम लोग बहुत तत्पर है। उड़ीसा से हम लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर भी हमने हमारे ब्रीडिंग बक्स दिए हुए हैं। स्वदेश फाउंडेशन के साथ शायद उनके वक्ते बोलने भी वाले हैं इसमें, तो उन्हें भी हम लोगों ने 150 गोट्स दिया है। और जो स्प्रिंग एक्सेलरेटर का काम चल रहा है हमारे यहाँ, पैलेडियम कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उनके साथ मिलकर
हम लोग ये काम करें। तो अभी तक जो हम लोगों ने छोटा बिजनेस किया था कि मिल्क प्रोक्योरमेंट हो, 10,000 लीटर से ज्यादा हुआ है सेल। गोट मिल्क का जो है 1.5 लाख से ज्यादा गोट मिल्क सोप बिके हैं, मतलब 35 लाख का इसमें ऑलमोस्ट लोगों को आमदनी मिली हुई है। तो इस प्रकार से जो काम चल रहा है, मुझे लगता है कोविड के बाद जो हम लोग काम करेंगे, तो एक तो इसमें क्लस्टर लेवल पे काम करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जोर है, स्मार्ट प्रोजेक्ट में भी जोर है कि हम लोग एक्सक्लूसिवली गोट प्रोड्यूसर कंपनीज एस्टेब्लिश करें। तो 13 ऐसे कंपनीज बनाने का प्लान है, और हम लोग 4 मिनी कैटल फार्म जो है ये बनाने का भी हमारा प्लान है। विशेषता वर्धा, यवतमाल, गोंदिया और उस्मानाबाद में हम लोग काम करने का सोच रहे हैं। और कमर्शियल गोट फार्म्स, तो मैं चाहती हूँ कि गोट ट्रस्ट जो है ये कमर्शियल एक्टिविटीज में हम लोग कैसे आगे बढ़ सके, हमें बढ़ावा देना चाहिए महिलाओं को। कि जैसे आप देखते हैं कि करीबन 4 लाख से ज्यादा इसमें महिलाएं जुड़ी हुई है। तो अनलेस हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप जो है कि कलेक्टिव्स बनाए, कमर्शियल फार्म्स की बात करें और बड़े बड़े यूनिट्स की बात करें, तो तभी इसमें कुछ मतलब निकल सकता है। तो इसके बारे में गोट ट्रस्ट ने जरूर सोचना चाहिए। और बाकी तो एट द लोकल लेवल, क्योंकि इंडिजिनस मीट है ये, तो इसलिए टाई ढाबा की जो बात है कि लोगों को अच्छा इंडिजिनस ब्रीड का मीट पसंद है, ऑर्गेनिक मीट की बहुत जरूरत है। तो इसके बारे में भी अगर हम लोग सोचे तो बहुत इससे फर्क पड़ सकता है। और लाइव स्टॉक के लिए जो ट्रेडिंग सेंटर होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर हम लोग सोचे नेक्स्ट लेवल पे, तो आज तक जिस मुकाम पे हम लोग पहुंचे 4 साल या 5 साल काम करने के बाद, तो हमने बहुत बड़ी छलांग ली है मेरे ख्याल में। कि हम लोग जब शुरुआत किया था तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट से शुरू किए थे, फिर 13 डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच गए टीजीटी, और आज तो हम लोग 34 डिस्ट्रिक्ट तक काम करें। और महिलाओं का जो मैं हौसला देखती हूँ, उनकी बात करने की जो उत्साह देखती हूँ, अभी हमने देखा संगीता ताई और लक्ष्मी ताई बोल रहे थे, तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और मैं सोचती हूँ कि गोट ट्रस्ट के साथ जो हमारा पार्टनरशिप है, इसकी वजह से और आने वाले भी जो हमारे पार्टनर्स है, जो स्मार्ट में मैंने कहा था कि चेवन हो या कैप्रिन हो या ल्यूशियस हो, एमिगो है, पैलेडियम है, तो स्वदेश फाउंडेशन है, इनके साथ अगर जब हम लोग काम करेंगे बड़े पैमाने में, तो हमने जो कुछ भी अभी अचीव किया उससे बहुत ज्यादा अचीव कर पाएंगे। सो वेरी हैप्पी ये पार्टनरशिप हमारा हुआ है, और आई लुक फॉरवर्ड कि अच्छी तरह से हम और इसमें आगे और प्रगति करें। आप सबका बहुत धन्यवाद, और आपके साथ जुड़ी रहूं इसमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारी महिलाओं को भी विशेषता से बहुत लाभ होगा, ऐसे मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Muted. Vikraj, you are muted. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am, and thank you for sharing the insights on how the possibilities that we have tried to project have been actualized with MSRML and at scale, and the possibilities that exist with further products in market, and how collaboration we can look for in the future. So thank you for that. I would now request Sanjeev sir to share his take on the topic and its pertinence for rural livelihood. Thank you, ma'am, for putting it so nicely. Thank you, Upadhyay sir, for giving the whole, I think, 2 different part of the picture was well merged. I'm delighted. I'm delighted. Can we mute? Can we mute? I'm really delighted to find the best combination of discussions were already happening, and the community cadre, community leaders, I would not say cadres, they are leaders. So thank you, Tai, for giving that leadership to us. It's a time when we are not able to give leaders. The leaders should come from the ground. So as said, when the people come from the ground to take the leadership, then only change is possible. I'll just start with this oldest profession of humankind. After post-COVID, one of the things is the natural. What is natural on this earth and what is unnatural? Many discussions, goats are considered for environment destruction. We never work with these kind of people. We have, 135 million goats. So totally around 200 million small livestock, goat and sheep. And those families' livelihood depend on that. But whenever we debate, we go into a different direction, not supporting them, even blaming them.
And even with all that, goat rearers and goat population has increased. And increased very sustainably. You cannot say because of goat, there have been environmental, except as local conditions, that's of course to be taken care of. But largely, goat is now used for environment protection, then destruction of the environment. A debate, open debate in this country needs towards this, because that's the livelihood of the poorest. So three things I would like to highlight, already had been said, a lot of things and various perspectives. The first thing is these goat farmers, who are they and why this whole development program, development paradigm need to build their capacities. Because in the beginning, and Dr. K.K. Upadhyay said very categorically, the land holding is going to decrease. And those migrant workers who are getting back to village is certainly not a landowner. They are landless or marginal farmer. So any plant you make in the country on the land-based agriculture, of course, I didn't have any, biasness towards that. But the reality is, we also have to look for such kind of complementary income, especially the women. The second thing I would like to highlight about the health things. From where this, the milk ability in rural area has been decreasing day by day. A poor farmer cannot afford even the large animal. So how we are going to feed them, their children? And recently it was heartbreaking to me when I saw 80% of children were malnourished with whom we are working in a just outskirt of Lucknow. Not working, it's because of COVID, we went to those villages and we found, although aesthetics aesthetics is just to you present, but when you feel the aesthetics, that's the basic difference between a data to be shown and a data to be felt. The moment you feel a data, what does malnourished means? Then you feel that it's a challenge in front of us and we need to take it up. We cannot just present the, the graphics, it's beyond PPT kind of thing. It's the feeling which comes from the heart. Unfortunately, I see these data are not getting into emotional quotient of ours or emotional well-being of ours, unless and until around the people are not emotionally, physically healthy, none of us are safe. I'm not afraid with COVID. I'm more afraid of the people. The moment they will be, the way they are getting, different kind of exposures, different type of problems, we'll never have a good society. So what the second thing as I was talking about nutrition, and third, what MSRLM has shown us. When we started in Maharashtra, I know those days, it's a difficult. It takes time. One of the thing I would also like, it takes time for you to experiment, to design. Just rushing to the poor people will not work. You need to go into a technology appropriatization, process appropriatization. You cannot copy and paste the thing. And here I still feel all of us need to do, and supporters also need to understand. So coming back, I'm delighted, and the way we listened different panelists, and as well as the whole story, the bigness of this whole thing is still minuscule. We just want to create a hope. And if today, say, this webinar creates a hope inside all of us, we can make it. It's possible. And only thing I like about the Goat Trust, we are a very small organization. Hardly 40 people if we consider all of them together. And now we are able to work with around 16 states, 4.25 lakh families, just because we have partners like MSRLM and leaders like Mrs. Bimla Ramesh, who understand this. And you saw when she started with a community kind of thing. See, what happens when community leader speaks it out, and that makes a difference. I want to work with those leaders who look into the community. That is the centrality, what we presented, production centrality and customer centrality. So coming back, I mean, lot of queries will be coming, lot of questions will be coming, but we will be able to respond to your questions and would love to questions. Only one thing I would again say, there is a hope.
till we work on those solutions. And Goat Trust, just an example, perhaps the smallest example on this earth, with the gracious board we have where Dr. K.K. Upadhyaya sir is there to guide us. And the moment he says be curious, I mean, if you see the positiveness of a person long back, I still consider those are the positiveness we need again to come back. India will be world guru only because there will be people, and all of us can be. I mean, that's not a very rare thing. Common people only create extra common. Ordinary people create extraordinary. So coming back, I will be happy to respond, to understand, and to work. And on behalf of Goat Trust and the International Institute of Goat Management, I'm thankful to all of you, and especially those audience who, within 3 minutes, we have our house full. We have just 100 seats and all were full. So I'm getting, Vikraj, I hand over to you, and let us continue this discussion. Thank you. Thank you, sir, for the insights and the importance of empathy when we look at the data, and the importance of positivity and investment, which is required, as K.K. Upadhyaya sir also mentioned, that we need to look beyond the project. We need to look at it as a mission. So now we open the house for questions from the attendees. And we have been receiving a lot of questions, and for the attendees, I would like to mention that the questions that remains unanswered, answer or solutions to those questions will be forwarded to them either via WhatsApp or email. So starting with the questions, the first or the most pertinent that we have observed is how to graduate from producer groups to farmer producer companies. So farmer producer company simply being an institution beyond the name to the actual existence, actual functioning as a company, as running operations. So for that, I would request Mrs. Vrinda Ramesh ma'am to give your inputs on community experiences, how people graduate from producers to community managers. So I would request ma'am to provide your experiences on that. The question is for me? Yes, ma'am. Okay. So see, basically what we have observed, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ क्योंकि महिलाएं सुन रही हैं हमारी, तो फिर अंग्रेजी में बोल, we want me to, I can say in both languages. So the basic advantage of this program has been, one, of course, is that the scale at which it has grown. You know, we began very small, but today we are a very sizable number. You know, we reached a big market, and we are a force to reckon with, because other states are also asking us to come and support them. Like there was a request from Bihar to come and, you know, share our experience with them. Our women have gone to Madhya Pradesh and Rajasthan also and come, and they've spoken about the program. So this has been a great value which is generated, because goat is something which any woman can keep in her house, or any family can keep in the house. It is very easily, you know, affordable, and people can buy it at ease. Whereas buying a cow and maintaining a cow is much more difficult. But the advantages of having a goat are much more than having a cow, because first of all, you're getting milk, and then also goat meat is easily consumable. Like there are lesser taboos attached to goat meat compared to, you know, cow meat. So that you get a value added advantage of, you know, being associated with the goat breeding, because automatically you get a different kind of market. Goat carcass also is looked at, you know, people do want, and there are a lot of countries who are seeking for this kind of material available. So I think that is an added advantage of, you know, getting into goat management. तो महिलाओं के लिए ये निश्चित रूप से बहुत उपयुक्त है, क्योंकि आपके घर में ही, आपके घर के बाहर आप गोट रख सकते हो, और इसका मैनेजमेंट करना इतना मुश्किल नहीं, जबकि अगर गाय हो या भैंस हो, उसका मैनेजमेंट बड़ा जो है प्राणी, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, पर गोट का मैनेजमेंट इजी हो जाता है, गोट को मेंटेन करना भी इजी हो जाता है, गोट खरीदने में भी इतनी तकलीफ नहीं होती है, अब गोट का ब्रीडिंग भी जल्दी हो जाता है, और इसको जैसे डीवर्मिंग करना है या वैक्सीनेशन कराना है, तो ये भी करना काफी तरह से आसान है.
इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम हमने लिया है महिलाओं के साथ, इसको काफी यूजफुल रहा है ये। और जिस तरह से महिलाओं ने भी इसको एक्सेप्ट किया, तो इनको भी ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत लगन और मेहनत के साथ ये की। अगर हम लोग किसी चीज को किसी को सिखाते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करके उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से करे, तभी उसको सक्सेस मिलता है। तो हमारा सिखाना तो है ही महत्वपूर्ण, पर महिलाओं ने जो इसको सीखकर जो इसको अपने आप को इसमें संभाल लिया और इसको जो बढ़ावा दिया है, वो बहुत ज्यादा जो है नंदनीय है, और इसको बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने किया हुआ है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मैनेजमेंट में, कि महिलाओं ने इसे आत्मसात करके इसको बढ़ावा दिया है। इनको हम लोग जितना सपोर्ट कर पाएंगे और ये और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैं सजेस्ट भी कर रही थी आपको, कि बड़े पैमाने पे और बड़े तौर पे और दूसरे कंपनीज ने आकर भी इसमें ज्यादा तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है जितना सपोर्ट हम महिलाओं को दे पाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो दिस इज माय सजेशन। Thank you, ma'am, for the insights and the suitability of goat-based livelihood for marginal farmers. How is it, how the entry barrier, the ease of rearing, and the importance of collaboration with the stakeholders in the environment to propel growth and to think big as on scale. And so thank you for that, ma'am. Another major question that we are receiving is on the supply chain part. So how to, because milk is a perishable commodity. So I would like to transfer this question to Upadhyay sir. Based on your experiences with Safal, with Mother Dairy, so I would like to have your insights on supply chain management. देखिए, सप्लाई चेन की जब हम बात करते हैं तो किसी ने कहा कि मिलते तो रोज हैं मगर मुलाकात नहीं होती, मिलते तो रोज हैं मगर मुलाकात नहीं होती। तो उसका जवाब ये था कि लगाए रहिए बातों में, खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में, लगाए रहिए बातों में, खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला कि हम लोग कॉन्स्टेंटली आपस में बात करें, एक दूसरे की बात समझें, एक दूसरे को अपनी बात समझाएं और उस पर एक्शन लें। As I said, the technology, now the technology is, और आज का जो टाइम है, when you have to live inside your house, this has given us an opportunity also where we can start understanding things now. और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब ये है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। आज भी हम जो कवर कर रहे हैं वो बहुत कम है। अगर आप दूध की बात करें, अगर दूध आपका नहीं बिकता है तो आप उसका पाउडर बना सकते हैं, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो सप्लाई चेन में कोई वो नहीं है, इट्स ओनली गोइंग ऑन ए स्केल विच इज वायबल, जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो, क्योंकि अंत में ये तो पैसे की बात है। अगर पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा, तो आपका व्यापार भी चलता रहेगा। धन्यवाद। That was the benefit of goat milk and how it is different, or how it can be projected to the customer. Because when we find a remunerative market for the producers, so for that we need to have to transfer the consumer rupee, how to have a higher consumer rupee for the remunerative market of the producer. Sanjeev sir, I would like to have your take to answer this question about the benefits of goat milk, how it is different to the other available options, and how it could be projected not like a milk but as a health drink. Over to you, Sanjeev sir. Two things we need to understand. What you put inside, it comes outside. The whole livestock industry is when you put inside something garbage in, garbage out. It's for not computer, it's for livestock too. When you didn't feed your livestock well, you never get a healthy product out of livestock. Don't try to fool your livestock. If you see this basic question, then how goat works. Just now, goat is largely natural condition farmed animal. Madam said organic farming. If you read the definition of USDA, US definition of organic farming in livestock,
there are 7 criteria that we need to follow. 6 of them we are already following. Perhaps we are unfortunate for goat. We have a organic product in goat. Nobody can deny it. The only problem is the certification and the policy of our country, where organic product certification is still not coming. So I come to the next part of the question. First thing is your goat milk is organic. The moment I say organic, it's a naturally farmed condition, goat milk. And second, for a lay point of view, first I would like to make you understand how many leaves a goat eats. If you eat 13, 14, 20, 42 type of leaves, go with a goat one day. I mean, 7 years back, I had been 2 days with the goat in Rajasthan, and I photographed all those leaves which goat takes up. And you'll be really surprised how many number of leaves a goat consumes in a day. In my own study, it says more than 42. Given the minimum opportunity, taste almost all leaves. So now I come to the scientific basis. One thing is very logical. When you have such number of leaves, what comes is the juice of leaves. You understand this whole biological phenomenon. Animal gives out the juice of the food you have given to it. And why the dairy A1, A2, A3, whatever case say, the basic problem is our feeding the style of our livestock is into danger. And the story goes on the soil, the naturality we are preserving. And if you go into scientific understanding, we can say you the whole minerals. Milk is not for fat and protein. I think one of the greatest misconception somehow created, that was not designed originally in whole Amul pattern. Fat becomes a pricing technique in milk. As we understand, minerals should be the real value of a kg of your milk. Because the amount of mineral you take from a goat milk, you go and put on Excel sheet from Revital, I would not name any particular company, sorry. But then you go into any market product, the same mineral you purchase in almost 700 to 3,000 rupees. Depends on which company and where you are purchasing those minerals. So tell me, 1 rupee, 1 kg of or 1 liter of milk should cost then 700 rupees to you if you are paying for the minerals. And then only this whole organic or say natural farming or the way we treat our livestock need to be cared for. So the problem is one as a consumer. Scientifically, you look at the minerals, highest amount of mineral, potassium, can replace your sodium, which is the real cause of your BP, blood pressure. Selenium, जो always everybody say me डेंगू में बकरी का दूध काम आता है. क्यों काम आता है? क्योंकि सेलेनियम इसके अंदर जो है वो हमारे रेसिस्टेंस को, एंड दैट्स ट्रू फॉर कोविड ऑल्सो. अभी नहीं हुआ है, 10 दिन के बाद आप सुनेंगे. अभी रिसर्च चल रहा है कि बकरी का दूध कोविड में इम्यूनिटी को, दैट्स अ डायरेक्ट रिलेशन. Your mineral deficiency creates your immunity towards lower side. So manganese, magnesium, potassium, which is highest, 186, even not near any animal cannot come to us, to the goat. So goat milk is scientifically, if you want to see the research wise, I bet you we have done last 3 years all analysis of goat milk composition. If you just think a logical practicality, why it should be better, because the reason, and why it tasted also salty. Many people say कि ये थोड़ा नमकीन लगता है बकरी का दूध. And I met over 1,000 people who have taken goat milk in their early childhood. And many of them I challenge, why not you come and join to pay the price of your that goat milk. हम लोग बकरी का दूध पिए हैं तो एक दिन तो उसकी वापस करनी चाहिए. And here यहाँ पे जो salt होता है वो इसलिए होता है कि mineral content high है. बट हमारा मार्केटियर्स क्या करेगा, कभी कभी हम मार्केट में क्या करेंगे, जब आप बोलोगे बार बार उसमें सॉल्टी आ रहा है तो हम कुछ और मिक्स करके उसको खराब कर देंगे. तो रेडीनेस टू हैव ए नेचुरल प्रोडक्ट. एंड आई मैडम सेड कि उन्होंने टेस्ट किया है, मैं कहता हूँ आप भी करो. ईच ऑफ अस शुड टेस्ट इट आउट एंड देन, और ये उसका करिए जिसमें 1 लीटर दूध है. अगर आप 100 ग्राम दूध निकालोगे, हेयर्स आएंगे, यूरिन का गंध आएगा, क्योंकि बकरी बहुत गंदगी में लोग रखते हैं, और वो यूरिन का टेस्ट पी के आप बोलोगे बकरी का दूध ऐसा है.
क्लीन मिल्क का जो डिफिनेशन है, जो डॉक्टर उपाध्याय सर हमें बता रहे थे, सैनिटेशन, हाइजीन, हमारा लाइव स्टॉक प्रोडक्ट की हाइजीन मेंटेनेंस भी बहुत पुअर है। तो अगर आप हाइजीन करके ये दूध पीते हो, I again repeat, and what's why we came to the Caprico brand, just because हमें लगा कि अर्बन एक बहुत बड़ा चीज मिस कर रहा है, and more than urban, my personal interest is in rural India. रूरल के बच्चों को हम ये दूध क्यों न दें। और मैं MSRNM में मैडम से आज रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो मैं कर अभी बहुत दिनों से, क्यों ना हम ये जो हमारा बाल पोषण प्रोग्राम चलता है गांव में, जहां हम बाहर का खिचड़ी खिलाते हैं, क्यों नहीं हम बकरी का दूध उनको उपलब्ध कराएं। ये गांव का प्रोडक्ट है, बच्चे भी जानते हैं। और हमने अभी जो कोविड में रिसर्च किया, हम लोगों ने 270 बच्चों को 1 महीने दूध पिलाया और उनसे टेस्ट पूछा। जो कि ये कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं ऋतुराज, वो आपको बता सकते हैं ना, वीडियो हम दिखा सकते हैं आपको। बच्चे दौड़ के आते हैं बकरी का दूध पीने के लिए। इससे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को है कि बकरी का दूध का टेस्ट अर्ली चाइल्डहुड से ही हमें पिलाना पड़ेगा। और मैं मैडम से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, क्यों ना हम गवर्नमेंट प्रोग्राम में एडवोकेसी करें। तो 180 लाख। थैंक्स फॉर सजेशन। डेफिनेटली हम लोग इस पे आगे बढ़ाएंगे बात को, और जहां जहां अवेलेबल है वहां हम लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस करें। तो डेफिनेटली वी विल मूव दिस। I think that should need to be, that can change the whole policy of the, and after COVID we need to be decentralized system. गांव का पैदा चीज गांव में खिलाया जाए। हम बाहर के सप्लाई पे अगर रहेंगे तो कोविड और दूसरा कुछ अगर आया तो हमने अभी झेल लिया पिछले महीनों में। फर्टिलाइजर की बात हो तो गोट मिल्क का जो सवाल था, शायद मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे दिल के पास है ये बात, आप जितना इस पे सोचेंगे, ये रूरल इंडिया के लिए, महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, और हमारी पशु सखी सुन रही हैं तो मैं उनको अपनी तरफ से थोड़ा सा स्ट्रेस देके कहूंगा कि दीदी क्यों नहीं इस पे हम लोग बात करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को जितना मिनरल्स चाहिए, जितनी आयरन चाहिए, आप मिल्क का उठा के देख लीजिए। गोट मिल्क में सिर्फ एक फॉलिक एसिड छोड़ के दुनिया के सारे तरह की चीजें। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, थैंक यू। इस पे एक और संजीव जी, थोड़ा मुझे एक मीटिंग में निकलना है, तो जो भी क्वेश्चंस हो मैं आपको बाद में रिप्लाई दे दूंगी अगर कुछ हो तो। सम क्वेश्चंस में कम, डेफिनेटली आप मुझे मेल कर दीजिएगा, और कोई इश्यूज हो तो विल डेफिनेटली रिजॉल्व। एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको देख के, उनकी बातें सुनकर, बिकॉज वही हमारा जो सही जो रूप है इस प्रोग्राम का। और बहुत अच्छा लगता है कि जब वो इतने कॉन्फिडेंटली बात करे। तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम श्योर अच्छा हम लोग और काम कर पाएंगे, और आपके जो भी सजेशंस है वी विल वर्क ऑन दैट आल्सो। So we look forward to your technical support and partnership, and thanks to Dr. Upadhyay also for some of the tips which he has given. I look forward to this. So I'll sign off now क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, तो I'll. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now we move towards the end of the webinar. We have already overshooted. Thank you all. Thank you, Upadhyay sir. Thank you, Sanjeev sir. And for the attendees, I would thank them all for their patience to be with us throughout this webinar. For your questions that have remained unanswered, I'm emphasizing again, we would be replying you through WhatsApp and emails that you have registered. Once again, thank you all, and thank you हमारी जो पशु सखी दीदी हैं जिन्होंने आके next webinar announcement. Yes sir. So this is a series of webinar from International Institute of Goat Management, which will happen every Friday at the same time, and each Friday we would talk on the in detail at every aspect of the value chain. On the next week, next Friday, we will be having a webinar on breeding and how to improve the genetic worth of the livestock in India. So we would be reaching out to you with the registration links and the actual posters of the webinar. Thank you for your support, and thank you for joining us. Yeah, just one line that I would like to add. The next webinar will also talk about kid nursery as a micro enterprise and artificial insemination in goat to improve the breeding. So all those who are interested have questions around breed and breeding. What kind of breed, milk breed, non-milk breed, I think I would invite them to join. Yes, Rituraj, hand over to you. Thank you, sir.
So thank you for defining further on the topic, sir, and hope all attendees will be curious to join in the next week or the next session of webinar. I believe we would be concluding now. So once again, thank you all for being with us through this time and providing your valuable feedback. Thank you. Thank you, sir.